defense under law of tort. Following are the defenses available for the wrongdoer, which can be used, which are defense can be used: voluntary non-fit injuria or the defense of consent. The wrongdoer is the plaintiff. Inevitable accident, act of God, private defense, mistake, necessity, statutory authority. Non-fit injuria. This means that if the suffering is willing, no injury is done. मतलब कंसेंट है तो इंजरी नहीं होगा. कंसेंट में भी expressed or implied. Accordingly, harm or even grievous hurt may be inflicted on a person for which he has no remedy if he has consented to take the risk. तो अगर कोई चोट लगी तो उसके पास कोई रेमेडी नहीं होगी अगर कंसेंट दे दिया है रिस्क लेने का. ये इंजरी लॉफुल गेम, स्पोर्ट्स या सर्जिकल ऑपरेशन में भी हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, विराट फुटबॉल मैच देखने जाता है. उसकी सीट फर्स्ट रो में होती है जो बिल्कुल गोल पोस्ट के पीछे होती है. सो जब एक प्लेयर को पेनल्टी किक दी जाती है तो प्लेयर जब बॉल किक करता है वो डायरेक्ट विराट को लग जाती है. विराट को थोड़ी सी इंजरी होती है, सो वो सूट फाइल करता है स्टेडियम के अगेंस्ट. तो प्लेयर डिफेंस यूज़ कर सकता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया की. मतलब विराट ने टिकट खरीदी है तो वो अवेयर है कि उसको थोड़ी बहुत इंजरी हो सकती है बॉल लगने से. Plaintiff will not succeed in the bringing an action or recover damages if it is based on unlawful contract terms. Plaintiff succeed नहीं हो सकता सूट फाइल करने में और डैमेजेस रिकवर करने में अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल टर्म्स में किया हुआ है तो. In the case of Pitts versus Hunt, there was a rider who was 18 years of age. He encouraged his friend who was 16 years old to drive first under drunken condition. एक 18 साल का बच्चा था. वो 16 साल के बच्चे को बोलता है कि फास्ट ड्राइव करने को अंडर ड्रंकन कंडीशन. But their motorcycle met with an accident. The driver died on the spot. सो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो गया और जो 16 साल का बच्चा वो मर गया. जो द पिलन राइडर suffered serious injuries and filed a suit for claiming compensation from the relatives of the deceased person. पिलन राइडर मतलब पीछे बैठने वाला बाइक में. तो जो पीछे बैठने वाला था उसको सीरियस इंजरीज हो गए. सो वो सूट फाइल करता है अगेंस्ट द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन. मतलब जो मर गया उसके खिलाफ सूट फाइल करता है फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन. द प्ली वॉज रिजेक्टेड एज ही हिमसेल्फ वॉज द रॉन्गडूअर इन द केस. वो प्ले रिजेक्ट हो गई क्योंकि उसने ही उकसाया था 16 साल के बच्चे को. Let's move on to the next defense, inevitable accident. It means that no damages or action can be brought when the event that has happened unexpectedly and could not have been foreseen or prevented in time even with all the reasonable precautions. इसका मतलब होता है कि सब प्रिकॉशन लेके भी अगर हम अनएक्सपेक्टेड इवेंट अवॉइड नहीं कर सकते तो उसके ऊपर हम कुछ डैमेज क्लेम नहीं कर सकते और उसके ऊपर एक्शन भी नहीं कर सकते हैं. इसके ऊपर फेमस केस लॉ है स्टैनली वर्सेस पावेल. द डिफेंडेंट एंड द प्लांटिफ वेंट टू ए फीजेंट बर्ड शूटिंग. डिफेंडर और प्लांटिफ बर्ड शूटिंग जाते हैं. The defendant fired at a pheasant, but the bullet, after getting reflected by an oak tree, hit the plaintiff and he suffered serious injuries. Defendant फायर करता है बर्ड पे पर वो बुलेट
ट्री को रिफ्लेक्ट होके प्लांटिफ को हिट करता है और प्लांटिफ को सीरियस इंजरीज होता है. The incident was considered as an inevitable accident. Defendant was liable, not liable in the case. ये इंसिडेंट को इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट था और डिफेंडेंट लायबल नहीं है इस केस के लिए. The defenses of act of God is somewhat significant variety of inevitable accident. मतलब inevitable accident का एक variety है act of God. But the key difference in both is that in act of God natural forces depict a vital role. For example, storms, floods, etc. पर की डिफरेंस है कि एक्ट ऑफ गॉड में स्टॉर्म्स फ्लड्स कंसिडर किया जाता है. Famous case law is Nicholas versus Marshland. The defendant created an artificial lake on his land by collecting water from natural streams. Defendant ने एक artificial lake किया, water collect किया natural stream से. Once there was an extraordinary rainfall, heaviest in human memory. The embankments of the lake got destroyed and washed away all the 4 bridges belonging to the plaintiff. एक बार ज़ोर से बारिश आई तो एम्बैंकमेंट था, जो वॉल था फ्लड्स अवॉइड करने के लिए, वो ब्रेक हो गया और उसके साथ 4 ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हो गए प्लांटिफ के. The court held that the defendant were not liable as the same was due to the act of God. कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिफेंडेंट लायबल नहीं है क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड के वजह से हुआ है. Defense. In order to protect oneself from any harm or danger, it is permissible by law to use a reasonable or justifiable force against that harm or danger, but certain essentials need to be fulfilled in order for the defense to be justifiable or reasonable. लॉ परमिट करता है अगर हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है अगेंस्ट एनी हार्म और डेंजर, तो लॉ परमिट करता है कि फोर्स यूज़ करने को अगेंस्ट दैट हार्म्स और डेंजर, बट देर आर सर्टन एसेंशियल विच नीड टू बी followed according to the law. They are as follows. Use of force is justified only for the purpose of self defense. फोर्स यूज़ किया है सिर्फ ये पर्पज़ के लिए कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है. देयर शुड बी एन इमिनेंट थ्रेट टू ए पर्सन्स लाइफ और प्रॉपर्टी. थ्रेट है अपने लाइफ और प्रॉपर्टी को, तो ही फोर्स यूज़ किया जा सकता है. द फोर्स यूज मस्ट बी रीजनेबल एंड टू रिपेल एन इमिनेंट डेंजर. फोर्स यूज़ किया जा सकता है, फोर्स रीजनेबल यूज़ किया जा सकता है टू रिपेल एन इमिनेंट डेंजर, वो डेंजर भगाने के लिए. फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो द लॉ हैज़ ओनली अलाउड टेकिंग सच मेजर्स विच आर नेसेसरी टू प्रिवेंट द डेंजर. प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉ ने कुछ मेजर्स बताए. उसी मेजर्स को ध्यान रखते हुए हमें सेल्फ डिफेंस का यूज़ करने में टू प्रिवेंट द डेंजर. इसके प्राइवेट डिफेंस पर फॉलोइंग केस लॉ है. बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक. द डिफेंडेंट फिक्स ऑफ स्प्रिंग गन्स in his garden without displaying any notice regarding the same, and the plaintiff, who was a trespasser, suffered injuries due to its automatic discharge. The court held that this act of defendant is not justified and the plaintiff is entitled to get compensation for the injuries suffered by him. डिफेंडेंट ने अपने गार्डन में कुछ स्प्रिंग गन्स रखे थे विदाउट एनी नोटिस. जो प्लांटिफ था वो ट्रेसपास करना चाह रहा था, तब उसके तो वो स्प्रिंग गन्स ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो गए और उसे इंजरी सफ़र करना पड़ा. तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिफेंडेंट इज़ नॉट जस्टिफाइड, एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट इज़ नॉट जस्टिफाइड एंड द प्लांटिफ इज़ entitled to get compensation for the injuries suffered by him.
तो डिफेंडेंट का एक्ट जस्टिफाई नहीं है और प्लांटिफ एंटाइटल इज कंपनसेशन के लिए, जो भी उसने इंजरी सफ़र किया उसके लिए।